Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now, and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. भाई नींदें उड़ चुकी है क्योंकि पहले तो नींदें उड़ी थी जब ओनरशिप चेंज हुई थी। अब नींदें उड़ गई कि भाई चेल्सी ने हाईजैक कर लिया डील। टॉड बोली ने पहला ये जो डील है वो स्पर्स और आर्सेनल को पछाड़ते हुए रफीनिया जो है वो साइन, मतलब वी आर क्लोज टू साइनिंग रफीनिया, मतलब लीड्स ने जो है बिड एक्सेप्ट कर लिया चेल्सी की। तो चेल्सी एंड लीड्स हैव reached full agreement for Rafinha. Official bid accepted around 60 to 65 million pounds. Add-ons included हैं इसके अंदर, मतलब इसके अलावा और कुछ पे नहीं करना. Main part of amount to be paid immediately. It's done between the clubs. Talks now going on players side on personal terms and contract. Bowley is on it. भैया मैं मतलब पहले मैं से चालू करना चाहूंगा कि एब्सोल्युटली अमेजिंग वर्क डन और क्वालिटी फॉरवर्ड, प्रीमियर लीग प्रूवन, was a hot property this summer in transfer window. बार्सिलोना पीछे थी, आर्सेनल पीछे थी, स्पर्स पीछे थी और भी बहुत सा, इवन पीएसजी का भी मैंने एक बहुत पहले शुरू में एक लिंक सुना था कि इंटरेस्ट, मतलब रफीनिया पे तो सबकी आंखें थी। और रफीनिया जैसा प्लेयर आता है हमारे पास, पहली बात तो भाई लेफ्ट फुटेड, ठीक है, कैन शूट विद बोथ फीट, बट एक होती है ना जो लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स की होती है एक क्लास अलग ही, भाई वो एक हमको मिल रही है। और गुरुजी तो हैं ही हमारे लीड्स के काफी बड़े एडमायरर, तो रफीनिया तो वैसे ही बहुत पसंद है आपको। रफीनिया फॉर अ मैसिव, भाई दिस इज नॉट इवन द पीपल हु आर नॉट लीड्स फैंस वो भी जानेंगे कि भाई रफीनिया ने कैरी किया है लीड्स को बहुत बार इन द लैटर हाफ ऑफ द सीजन, जब बहुत सारी प्लेयर्स इंजर्ड थे लीड्स के एंड जब फॉर्म ऑफ हाफ ऑफ द टीम वाज एट एन अल्टीमेट लो, रफीनिया के ऊपर वो लोग ने, as Rafinha was a central figure when it came to, you know, he was given a role of an advanced playmaker kind of a scene on the right, जहाँ पे वो खाली freely roam कर सकते हैं और वैसे भी करके वो बहुत अच्छे से influence करते थे गेम को। हमारे पास मैं मतलब over the moon with this Rafinha signing because of the fact कि भाई we have found a player that we weren't expecting also when we are getting Sterling. We are getting a Sterling, yeah, who's definitely good. I'm not, भाई मैं अंडरसेल नहीं कर रहा हूँ बंदे को, बट यार जब आप रीसेंट सीजन की बात करें, रीसेंट सीजन में रफीनिया हैज हैड मोर ऑफ एन इम्पैक्ट इन द लीग दैट वी आर प्लेइंग इन, सो ही इज कमिंग इन विद एब्सोल्यूट रेड हॉट फॉर्म, ठीक है। एंड आप एक ऐसे प्लेयर को भी लेके आ रहे हो जो शायद टूकल के सिस्टम में भी अच्छे से बैठेगा, क्योंकि ये हम बार बार बोल चुके हैं, we have traditional wingers currently in our team barring Rafinha and Sterling. We have traditional wingers, but Tuchel के सिस्टम में आपको traditional wingers की शायद उतनी जरूरत नहीं है, आपको inside forwards की जरूरत है। Rafinha is an inside forward, भाई Rafinha has a great shooting ability, ठीक है, लॉन्ग शॉट्स भी अच्छे लेते हैं, ठीक है, क्रॉसेस भी कभी कभी अच्छे, ड्रिल्ड क्रॉसेस भी कभी कभी अच्छे डालते हैं, has a great vision as well and a direct runner, and mostly he can take on defenders, ठीक है, he can take on defenders, he can take on defenders. So I feel for me he's slots in straight into the first team for me. Like a lot of other people will differ, for me he slots in straight into the team because he has everything that is required from a right winger in Tuchel's system, ठीक है। currently आप राइट में हम शायद कभी कभी हैवर्ट्स को रोम करा देते थे राइट पे, या राइट पे जिएश को खिला देते थे, ऐसे कुछ करते थे, बट जिएश इज अगेन, he didn't fit into a system because he's not exactly an inside forward. He's probably like an advanced playmaker kind of a deal, जहाँ पे आप जिएश के साथ ही आप पूरी की पूरी टीम बनाओ, but Rafinha doesn't want that, ठीक है, Rafinha doesn't exactly want that, even if probably you have a player like let's say Calvin Phillips at the top of your form, or if you have a Jack Harrison who is being given the ball a lot of times during Leeds के counter attacking plays में, तो it's absolutely all right, ठीक है, it was absolutely all right for Rafinha. So I feel एक बैलेंस आ जाएगी हमारे विथ में,
how we employ the width of the pitch, एक balance आ जाएगी, and it would be just amazing to see how that happens. ये तो हो गई टेक्टिकल साइड की, हाउ रफीनिया फिट्स इनटू द सिस्टम एंड हाउ इज अ परफेक्ट साइनिंग। कैमी भैया 3 घंटे पहले लिटरली ट्वीट आया है कि चेल्सी आर सीरियसली कंसिडरिंग टू राइवल आर्सेनल्स बिड फॉर रफीनिया, और 3 घंटे में हो भी गया सब कुछ। तो टॉड बोली पे कुछ कहना चाहोगे आप कि भाई, मतलब टॉड बोली ने पर्सनली सुपरवाइज किया है इसको? I think that's the way Chelsea have moved in past as well. But I think we have continued our ये पहला Brazilian winger नहीं है जिसने Tottenham और Arsenal को snub किया है. We know the other one who has won Premier Leagues with us. So विलियन की बात हो रही है बॉयज, जिसको नहीं समझ आया। बिल्कुल। And Willian turned out to be a good signing for us. You know, he won so many trophies and he was very reliable. I hope कि रफीनिया का एज नहीं मुझे दिख रहा है कि कितना एज है, कुछ अंदाजा है अभी? I think he is around 25. 25, तो एक वेरी यंग विंगर जो कि अगले 5-6 साल तक चेल्सी अभी तक प्राइम पे नहीं आया अब तक। That's what I'm saying. Exactly. Yeah. But अगर मैं वही लास्ट सीजन के स्टैट्स देख रहा था, he played 35 games out of 38. That means he's fit. ठीक है। ही, और अगर आपने लीड्स का प्ले देखा है, वो मैन टू मैन मार्किंग करते हैं और they just don't stop running all through the game, and especially their attackers. And he attempted nearly over 1,000 passes and scored 11 goals as well. So he is you can say an attacking playmaker, और मेरे ख्याल से जैसे गुरुजी ने भी बोला कि he will be a good fit in terms of playing the Chelsea style of play. But गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप रफीनिया को 4-3-3 में देख सकते हो क्या, या फिर 4-2-1-3 में? In terms of अगर माउंट नंबर 10 खेलता है तो will he be a right side winger? Yes, absolutely. 4-2-1-3 is what I was thinking of as well. अगर शायद ये डिस्कशन उधर जाता तो मैं भी वही सोच रहा था कि एक 4-2-1-3 वाली हम फॉर्मेशन खेला है, जहाँ पे we will probably not let go of any player who is in the transfer window. अगर आप 4-3-3 खिला रहे हो तो बहुत रोटेशनल पर्पस हो जाएगी, जहाँ पे माउंट, हैवर्ट्स और रफीनिया या स्टर्लिंग कभी आएंगे अंदर लेफ्ट विंग पे खेलने के लिए, और माउंट को शायद आप एक सेंटर मिडफील्डर में, शायद अगर आपको एक अटैकिंग इम्पेटस चाहिए रहेगा, तो एनी ऑफ दो सेंटर मिडफील्डर्स कैन बी मेसन माउंट एज वेल. He can double up as in that double pivot as well. तो वो भी चीज हो सकती है। एक इसमें मैं चीज ऐड करना चाहता हूँ कि 4-2-1-3 में अपने पास 1 और 3 खिलाने वाले तो प्लेयर्स आ गए। स्टर्लिंग भी आई है, जिस तरीके से मूव कर रहा है सब कुछ। करेक्ट, ठीक है। तो स्टर्लिंग ऑन द लेफ्ट, रफीनिया ऑन द राइट, हैवर्ट्स बीच में खेल सकता है, कोई इशू नहीं है। बट हाँ बाबा तू बोल उसका। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास अभी वो मिडफील्डर नहीं है, वो 2 में खिलाने के लिए बीच में, क्योंकि अगर हमको 4 एट द बैक खिलाना है, आप थियागो सिल्वा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एट दिस एज कि वो सेंटर बैक पेयरिंग में खेले, 4 एट द बैक खेले। तो इट डिपेंड्स कि हम कौन से सेंटर बैक्स लाते हैं और कौन सा एक मिडफील्डर हम लेके आते हैं, और गैलेगर को कैसे फिट करेंगे हम टीम में, वो वाली बात। इसलिए वो 3-5-1-2 वाली फॉर्मेशन भी हमने जो लास्ट सीजन कभी कभी अपनाई थी, राइट, जहाँ पे हम लुकाकू या जियेश को पेयर अप कर रहे थे कभी कभी। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड वो सब चीजें, हाँ दर्द। ठीक है, लुकाकू जियेश को पेयर अप कर रहे थे, एंड और लुकाकू हैवर्ट्स को पेयर अप कर रहे थे कभी कभी, ताकि जियेश को आप नंबर 10 वाला रोल दे पाओ। वैसे वाले सिचुएशन पे भी हमने खेला है। सो although they didn't work primarily because of different reasons, but I think now it could work because जहाँ पे वो चीजें वर्क कर रही थी वो सिस्टम अभी भी सही है। In the midfield and the defense, we have those 2 wide fullbacks who will be absolutely fit come the start of the season. ठीक है, we have 3-5-1-2 को support करने के लिए we have the 3 center backs, Thiago Silva perfect 3 center back pairing. ठीक है, एंड वी हैव दीज 2 सेंटर मिडफील्डर्स एज वेल। ये तिगड़ी जो सेंटर मिडफील्डर्स की जो है, वी हैव एनगोलो कांटे, मैटियो कोवाचिच और कॉर्नर गैलेगर। आई थिंक फॉर मी कॉर्नर गैलेगर स्लॉट्स स्ट्रेट इनटू द फर्स्ट टीम। ठीक है, वी हैव अ कॉर्नर गैलेगर ऑन अ रोटेशनल पर्पस एज वेल, एंड इन दैट एस्पेक्ट इफ वी हैव अ 3-5-1-2, वी हैव अपने स्लॉट पे प्रॉब्ली खेल रहा होगा मेसन माउंट, एंड इन द एज अ फॉरवर्ड थिंकिंग वाला सीन, आई कैन स्टिल pair up a Rafinha with, let's say, a Kai Havertz. I'll tell you why. Because Rafinha is very good at running down the channels. रफीनिया सब कुछ कर सकता है यार, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। That is why he's almost he's an inside forward and he's a very good finisher also.
जो That's what जिसकी I'm ज्यादा saying. बात नहीं होती है, उसकी फिनिशर भी shooting बहुत boots अच्छा है वो। बहुत अच्छा है, उसकी शूटिंग बूट्स बहुत अच्छी है, उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है. यू नीड, if you're playing a 3-5-1-2 as well, the Tuchel की जो अटैकिंग हाफ में, जो ऑपोजिशन की अटैकिंग हाफ में जो एक्टिव प्रेसिंग उसको चाहिए, ठीक है, फ्रॉम ऑल ऑफ हिज अटैकर्स, रफीनिया इज वेरी अवेयर इन दैट सेंस. जैसे अभी कैमी भैया भी बोल रहे थे, लीड्स are a team who are required to run a lot, and Rafinha has developed his game over seasons because of the fact कि when he's saying that defensively liable थोड़ी सी बन रही है उसकी टीम, तो Rafinha और ज्यादा responsible बन जाता है in his position. He's a match winner भाई in that sense. ठीक है, he can win you games through his goals, or he can win you games by tracking back and being a little bit more supportive towards your defensive situations. So that is something that Rafinha can do as a whole. I have seen him like really closely for Leeds United, and I think it could be an absolutely beautiful signing for 60 million. I don't think so some Barcelona fans are even realizing that 60 million for Barcelona for Rafinha may seem like a big deal, but considering the package that comes into your team for 25 years ka banda hai bhai, he will be coming into your team and will be achieving his prime once he comes into your team. He will be coming into his prime age after he comes into your team. So imagine he's Barca can keep Dembele now. I think Barca can. Barca will keep Dembele. Barca will keep I think it's a win-win situation only. I think it's a win-win situation. दोनों के लिए win-win situation है. और भाई ठीक है, हम तो सोच ही नहीं रहे थे कि हम ये win situation में आएंगे. भाई ठीक है भाई, मैं यही पॉइंट पे आ रहा था कि कितना हमें एक एंथुसियाज्म सा आ गया फैंस की. एक साइनिंग हमने कर दी और जिस तरीके से हमने करी और जितनी जल्दी हमने कर दी, समझ ही नहीं आया कि भाई ये हुआ क्या. कुछ था ही नहीं. शाम तक भाई, शाम को हम पॉडकास्ट कर रहे थे, तब तक कुछ सीन नहीं था और अभी देख लो साइन हो गया. दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैं ये पॉडकास्ट लेंथी हो जाएगा, मतलब मेरा पॉडकास्ट करने का तो था ही नहीं, तो रिएक्शंस ही हैं. जिस तरीके से हमने रफीनिया निपटाया, डू यू थिंक, और स्टर्लिंग भी मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड तक अनाउंस हो जाएगा, मतलब हेयर वीगो हो जाएगा, फाब्रिजियो ने बोला है इस वीक के एंड तक अग्रीमेंट हो जाएगा, दोनों टीम्स में पर्सनल टर्म्स बचेंगी. Actually, Baba, can I comment here? Maybe. Actually, this is a slap on all those Chelsea forwards ना, जो जाके इस सीजन के बाद बहुत बकचोदी कर रहे थे. ठीक है, they thought के चेल्सी जैसा एक बड़ा क्लब is run by them, maybe, क्योंकि वो बहुत egoistic बन गए थे, honestly speaking. ठीक है, वो जाके कभी इंस्टाग्राम से फोटोज हटा रहे हैं, नाम हटा रहे हैं. A club is bigger than a person, simple as that. ठीक है, तुम नहीं खेलोगे तो कोई और खेलेगा. ठीक है, तुम नहीं खेलोगे तो कोई और खेलेगा. और दैट इज द स्टोरी कि अपने आप को कभी भी क्लब से या टीम से बड़ा नहीं समझना चाहिए. प्लीज कंटिन्यू. नहीं बिल्कुल, बहुत वेरी वेल पुट कैमी भैया, बहुत ही बढ़िया पॉइंट. और मैं इस पे आ रहा हूँ कि जैसे अभी सिविया ने बोला है कि 5th जुलाई इज डेडलाइन फॉर चेल्सी. If they're really interested about Jules Koundé, they have to submit a 5th July. वरना उनको प्रिपेयर करना है फिर नेक्स्ट सीजन के लिए, और उनको ऑप्शंस देखने हैं कि क्या है. वैलिड ठीक है. जिस हिसाब से मूवमेंट कर रहे हैं हम, तो डू यू थिंक कि एक वीक में, आज से एग्जैक्टली एक वीक है 5th जुलाई को, डिलीट का सॉर्ट होगा या नहीं होगा? जैसे हम जो डिलीट वर्नर प्लस कैश डील करना चाह रहे हैं डिलीट के लिए, जो आ रहा है अभी न्यूज में, विच इज वेरी गुड. अगर स्टर्लिंग आ जाता है, तो अगर स्टर्लिंग आ जाता है, रफीनिया आ जाता है, तो वर्नर जाता है, थोड़ा सा दुख होगा बट ठीक है, मतलब कोई बात नहीं. दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डू, क्योंकि प्रेसिंग नीड है इस समय हमारी. एक सेंटर बैक, एलीट सेंटर बैक, एक प्रेसिंग नीड है हमारी, एंड डिलीट इज दैट. तो आपको लगता है कि ये एक वीक में नेक्स्ट, मतलब जिस तरीके से हम जा रहे हैं, तो आइदर वन विल बी फाइनल, एक तो फाइनलाइज हो ही जाएगा. कुंडे 2 दिन पहले रफीनिया का पता नहीं था हमको कि रफीनिया आ रहा था. हाँ, 2 दिन पहले हमको नहीं पता था. वी हैड नो क्लू. वही तो मैं कह रहा हूँ, एंथुसियाज्म आ गया. 2 दिन में बातें बदल गई भाई. 2 दिन में बातें बदल गई, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया भाई 2 दिन में. तो आई थिंक एक वीक तो बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है, and considering the fact that there is a solid transfer rumor regarding that move. ठीक है, रफीनिया का तो रूमर ही इतना स्ट्रांग नहीं था, कुछ था ही नहीं. मेरे कान में तो कुछ आया ही नहीं भाई. हमारे साथ तो कुछ बस ये आया था कि चेल्सी आर इंटरेस्टेड बहुत पहले, बस उसके बाद कुछ नहीं था. बस उसका कुछ नहीं आया था भाई, सब इवेपोरेट हो गया. हमारा तो डायरेक्ट वाला चल ही रहा है. एंड नाउ इट मेक्स कंप्लीट सेंस
primarily because yes हमारी नीड है और वर्नर फ्रोजन आउट हो जाएगा भाई. वर्नर आफ्टर स्टर्लिंग कम्स इन, वर्नर को तो फर्स्ट टीम चांस मिलने से रहा. ठीक है, he will not Warner get a will be first on the team. bench. Warner Will definitely be on the bench, and I think a bigger priority in this sense would be a Christian Pulisic, not because I will spread propaganda against for him, but the thing is कि भाई आप you consider the fact कि when Todd, he's had a chat with Todd Boehly, ठीक है, he's had a chat with Todd Boehly regarding his future, ठीक है, at least for the first half of the season or for the first 2 to 3 weeks. The first person who comes from the bench for that left wing position would be Christian Pulisic in my head. ठीक है, not a Timo Werner. ठीक है, in that sense. And I think that is why it would be very, very beneficial for Timo Werner to just leave. And on the other wing, I think Hakim Ziyech could also be counting his last days at Chelsea. Hakim Ziyech, because Hakim Ziyech is also very ambitious Hakim player. का nearly loan they were saying कि AC Milan के साथ complete हो गया. होने वाला है. Now coming back to another rumor, Baba, if you want to go to, I know we are bidding for Sterling as well, but अगर नेमार का चांस बनता है, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था. अब ये एक आज जैसे मैं एक बार अब व्यूअर्स को दिखा देता हूँ. ये जो है एक, अब ये जो एल पाइस, अब कितना रिलायबल सोर्स है मुझे पता नहीं, बट मैनेजिंग बारसा ने इसको, मतलब जो कंसोलिडेटेड ट्वीट्स मिलते हैं, जैसे अब हमारा एब्सोल्यूट चेल्सी ऐसे मैनेजिंग बारसा है, तो PSG हैव टोल्ड नेमार हु इज लिंक्ड टू बार्सिलोना दैट दे वुड बी विलिंग टू लेट हिम गो ऑन अ लोन एंड विल पे द रिक्वायर्ड सैलरी. ठीक है, और एक और जो इसमें खासा डेवलपमेंट है वो ये है, एक सेकेंड, टैब बंद है, वो थोड़ा सा मैंने हाइप क्रिएट कर दिया, एक सेकंड. हाँ ये बात, ड्रम रोल्स. थियागो सिल्वा ने आज बोला है कि नेमार के लिए कि he has to go to Chelsea. If it happens, it will be for the best. He needs no comment. So far, I don't know anything, but I hope it comes to fruition. Openly बोल दिया भाई साहब, openly थियागो सिल्वा जैसा बंदा. अब लोन वाली न्यूज कितनी सच है कितनी झूठ मेरे को नहीं पता. मैं नहीं कहता कि वो एकदम क्योंकि किसी ने कोरॉबरेट भी नहीं करी है तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत ज्यादा ये, क्योंकि दिस इज अ मैसिव डेवलपमेंट. इफ यू गेट अ नेमार ऑन फ्री ऑन अ लोन, जिसमें आपको सैलरी भी मेजर चंक जो है PSG उसका पे करेगा, और उसके बाद थियागो सिल्वा. अब थियागो सिल्वा की मैं क्या, जैसे सादिक भाई से डिस्कशन हो रही थी, सादिक भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, द ओनली मैन हु कैन नैरो डाउन एंड कैन solve the temperamental problem with Neymar is Thiago Silva. Thiago Silva के साथ खेल के नेमार और टूकल के अंडर he has had his best football for PSG. He has played his best. Exactly. So do you think कि करना चाहिए इसको pursue? देखो, I am not 100% confident, लेकिन जो थियागो सिल्वा फैक्टर और टूकल फैक्टर है, क्योंकि टूकल के अंडर जब वो खेला था नेमार, तो he said कि he can play for his life for Tuchel. I think ऐसा कोई डायलॉग मारा था उसने. लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि just because of these bonds, I am bit optimistic. ठीक है, और ये optimism हो सकता है कि fruition, वो जैसे उसमें लिखा था word, today's word is fruition. तो yes, तो हो सकता है कि it may come to fruition. And then the thing is कि we will have one of the most potent forward line. ठीक है ना, going forwards with, if we have Neymar, Sterling and Rafinha as a backup winger, और उसके बाद Christian Pulisic को we can keep as a backup winger as well. The main problem will be like center forward, फिर हम क्या Havertz पे सारा अपना दारोमदार डाल रहे हैं, and there will be no backup for him. क्या उसमें फिर हम क्या उस सीन में क्या करने वाले हैं? मैं पार्टी पोपर नहीं बनना चाहता हूँ, बट नेमार को यार मैं डेफिनेटली, यार who wouldn't say no to Neymar, but positionally speaking, अगर आप थोड़ा सा ब्रास टैक्स पे आएंगे, थोड़ा positionally speaking, आप रफीनिया को भी लेके आ रहे हैं, आप स्टर्लिंग को भी लेके आ रहे हैं, आप नेमार को भी लेके आ रहे हैं, 3 इनसाइड फॉरवर्ड्स को आप लेके आ रहे हैं, और अभी तक आपके पास एक ही सेंटर फॉरवर्ड है. ठीक है, That's what I am saying. Yes. अभी तक आपके पास एक ही सेंटर फॉरवर्ड है, और एक चीज जो है सेंट्रली नहीं यार, नहीं, मुझे पता नहीं यार. he's good on wings basically. नहीं, विंग्स पे तो Yeah, बोला है, थोड़ा he's an रिस्ट्रिक्ट हो inside जाएगा, बट मतलब आप उसको नहीं कर सकते हो यार. डिप्लॉय वहां पर. मतलब नहीं यार, मतलब it doesn't seem right. It doesn't seem I right. think we may but buy कर सकता है वो चीज. but हमारे पास ब्रोहा है. What do you think about Broha?
और हाँ, ब्रोहा भी रहेगा. ब्रोहा अगेन रोटेशनल ऑप्शन. आई डोंट थिंक सो ही वुड गेट अ लॉट ऑफ फर्स्ट टीम अपॉर्चुनिटीज. ब्रोहा अगेन लेवाई कॉलवेल के बारे में भी सब बोले थे कि वो नेक्स्ट सीजन लेफ्ट सेंटर बैक वाली अपनी रोल को सीमेंट कर लेगा, बट मुझे भी नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ सीन रहेगा. आई वुड आइडियली वांट लेवाई कॉलवेल टू गो फॉर अ लोन टू अ प्रीमियर लीग क्लब. ठीक है, टू गेट 1 year थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस इन प्रीमियर लीग, एंड देन when next year when he comes back to us, I think he would be an absolute fit for us at that left center back position. So I think in that sense we are sorted. But for नेमार के बारे में बस मैं वही बात करूंगा और एक पॉइंट डालना चाहूंगा. अगर स्टर्लिंग आ रहा है and if Neymar is coming into the picture, and considering I really feel that his best position is left wing inside forward, ठीक है, that's Raheem Sterling. So how will I you know, bench? I know that's Raheem Sterling, but bhai, just imagine this thing. Neymar is the X factor, right? पता है, Like, हाँ, exactly. Sterling wasn't an X factor for Man City, never was. No. he KDB was for them. wasn't. Yeah. Mohamed Salah is for Liverpool. Where is Chelsea's X factor? You need a person with X factor to win big trophies, Yeah, to win Premier League. Sterling was the X factor for Manchester City when 5 for that seasons one ago. season. 4-5 seasons ago. Yes. For that one season, yes, Sterling. Yes. But he was in, even for England जब Euros में जब final में गई थी, Sterling definitely had a really good tournament at that particular. Sterling had a good tournament. Back cream. तो definitely. हाँ, तो वो आप मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि if you can unravel the good things about Sterling, he's still there. अभी तो वो बुढ़ा भी नहीं हुआ. He's 28, right? Correct me if I'm 27. wrong. Yes. 27. 27, 28. अब आएगा प्राइम, अब चालू हुआ है उसका. He's हाँ, उसका अब भी प्राइम चालू हुआ है, and we are getting him. So and if we don't give him the opportunity to shine for our club at his proper prime, for So an absolute basically, superstar. Guruji, you are saying no to Neymar. I don't want to say no to Neymar, but मुझे Conundrum हो जाएगा. देखो मुझे फीफा नहीं खेलना. सिंपल चीज है. मुझे फीफा नहीं खेलना. गुरुजी का कहने का मतलब है सिलेक्शन कंडम हो जाएगा. बट व्हाट आई थिंक इज, अगर वो लोन वाली बात सही है तो इट्स नॉट अ बैड बेट टू टेक. इफ अगर वो सैलरी का 80% देते हैं ना, 80% दे देना सैलरी, अब भी ले आओ. ठीक है, अब भी ले आओ. 80% दे रहे तो ले आओ भाई, हम कहीं ना कहीं जोड़ देंगे उसको. स्टर्लिंग को भी तो फॉल्स नाइन खिलाया खूब पेप ने. वही तो है, पेप की टीम में वो फॉल्स लाइन ही खेला है वो. हाँ, फॉल्स नाइन खिलाया. वो 4-4-2 का फॉल्स नाइन खिलाता था. नाउ 4-4-2 का फॉल्स नाइन स्लाइटली डिफरेंट देन हाउ 3-5-2-1 का फॉल्स नाइन वुड ऑपरेट. वो तो क्या, देखो अगर हमको 4 एट द बैक जाना है तो उसके लिए हमको एक सेंटर बैक चाहिए होगा, एक मिडफील्डर और चाहिए होगा जो हम शेप खिला सके. हमारे पास 4 एट द बैक खेलने वाले मिडफील्डर्स नहीं है, और हमारे पास रीस जेम्स का बैकअप भी नहीं है राइट बैक पे वो खेलने के लिए, क्योंकि एस्पिलिक्वेटा's legs are gone. He cannot operate as a full back पूरे इंटेंसिटी पे प्रीमियर लीग की. तो जॉनथन क्लाउस को अगर हम ला रहे 10 मिलियन का उसका वैल्यूएशन है सिर्फ जॉनथन क्लाउस का. हाँ, ले आओ. हाँ, कुछ यूटिलिटी प्लेयर रहेगा मलंग सर जैसे. And do you think Emerson is gonna come back to back up with for Chilwell? I think yes, he is coming back because हमारा कोई भी लिंक नहीं आया किसी भी लेफ्ट. उसने बोला भी है ना, उसने अग्री भी किया कि if Chelsea needs me, I will. और इयन मार्टसन को भी हमने फाइनवुड वापस भेज दिया, तो आई डोंट थिंक कि हमारे पास लेफ्ट विंग बैक पे और कुछ बचा है. And Alonso is nearly a done deal for Barca, you think? हाँ, Alonso ने तो ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दिया फॉर्मल. अच्छा, वो तो वैसे ही नहीं रुकना चाह रहा, वो वाली बात. Okay. और एस्पिलिक्वेटा इज आल्सो कीन ऑन अ मूव, बट वो ही रिस्पेक्ट्स द मैनेजर, ही रिस्पेक्ट्स द क्लब, तो एक बार बैठ के बात करेगा और अच्छे से. सो राइट बैक आल्सो बिकम्स लाइक अ, राइट बैक तो आएगा, एक बैकअप राइट बैक. और देखो सब कह रहे हैं जितने भी जर्नलिस्ट है, चाहे किंसेला हो गया, ऑनस्टीन हो गया, मैटलॉ हो गया, फाब्रिजियो तक ने बोल दिया 2 सेंटर बैक तो आएंगे ही आएंगे. अब वो दूसरा कौन होता है, डिलीट कुंडे में से एक हो जाएगा मेरे हिसाब से, और दूसरा कौन होता है वो देखने वाली बात है. आई होप इट्स कुले वाली, लेकिन लेट्स वो कुले वाली को जाने नहीं देंगे वो. दे आर वेरी स्टर्न ऑन दैट. बहुत मुश्किल है. अभी जिनचेंको से भी हमारा लिंक आया था फॉर लेफ्ट विंग बैक, तो वो भी वाली बात है, देखते हैं क्या होता है. बट दैट्स रफीनिया फॉर यू, दैट्स अस फॉर यू. भाई चेल्सी फैंस, आप देखे कितनी स्माइल आ गई है भाई सबके चेहरे पे. सही बात है. एक उससे कितना वो बढ़ जाता है, मोराल बढ़ जाता है. स्टर्लिंग ने जिस तरीके से पेस पकड़ा 2-3 दिन में, क्योंकि मैन सिटी से साइन करना था, तो भाई बड़ी साइनिंग थी, तो था सबकी नजर में.
भाई रफीनिया तो आर के बट आउट ऑफ डोंट यू नोवेयर थिंक कि लगाया है ना जो। मैन सिटी एकदम से 3-4 अपने की प्लेयर्स लूज कर रही है? अरे तो जूलियन अल्वारेज है उनके पास, उनके पास है ना, इसलिए अर्लिंग इसलिए हालैंड है चाहते उनके हैं। पास, इसलिए तो जाने दे रहे हैं वो। जूलियन अल्वारेज भी है उनके पास, वो तो एक्टिवली चाह रहे हैं कि स्टर्लिंग जाए। हाँ, एंड आई थिंक कुछ तो मोस्ट एक ऑफ द reason मैन है। सिटी फैंस आर आल्सो नॉट क्वाइट बम्ड अबाउट स्टर्लिंग लीविंग, मतलब सब बोल हाँ, रहे हैं कि हाँ। ठीक है, मतलब मतलब है, डेप्थ है काफी उनके पास, काफी वही depth है, जगह पे तो डेप्थ है, वही वही इट्स अ position पे विन विन फॉर ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। आई एम वेरी हाँ हैप्पी। बेसिकली। क्योंकि आप फिल फोर्डन को भी तो खिलाते हो लेफ्ट विंग पे, तो वही तो फर्स्ट फिर जैक ग्रिलिश भी तो आपने लिया है 100 मिलियन का, जैक उसका क्या ग्रिलिश भी तो करोगे? लिया है, हाँ, वो जैक वाली ग्रिलिश भी बात तो है। है उधर। चलो गाइस, बढ़िया, फाइनली एक साइनिंग कर लिया चेल्सी ने, देखते हैं क्या होता है। हो पर्सनल टर्म्स में कुछ अटके ना, बट वी नीड आई डोंट एटलीस्ट 4 to 5 more. 4 to 5 At मोर। least अभी तो 4 to शुरू 5 हुई है more. भाई, अभी तो 2 महीने शुरू बचे हुई हैं, है, तो जो लोग भाई कह अभी रहे थे, ट्रेन जस्ट स्टेशन से निकली है। हाँ, अभी पहली सवारी चढ़ाई है। तो जो लोग भाई कह रहे थे कि पहली सवारी चढ़ी है। चेल्सी टॉप 4 में नहीं क्वालिफाई करेगी और बहुत खराब सीजन जाएगा, होल्ड दैट जजमेंट थोड़ा सा, और 2 महीने की ट्रांसफर विंडो बची नहीं है। 2 महीने बाद जजमेंट देंगे हाँ, जब सीजन शुरू Goosebumps, होगा bro. ना। Sterling, Rafinha, Havertz, goosebumps, bro. Fuck. दिमाग खराब हो गया भाई बात मेरा करते हैं तो। अगस्त मिड में, जब पहला गेम वीक हो जाएगा ना, उसके बाद बात करेंगे हम्म। कि कहाँ कौन फिनिश कर रहा है, जब तक थोड़ी साइनिंग हो Crazy. जाएगी। आदिदेव गुरु ज्ञान को कर देना सब्सक्राइब, और कैमी भैया तो अपने भाई है, मेरा चैनल उनका चैनल, तो मेरे को कर देना सब्सक्राइब। वेरी क्लोज टू 32। प्लीज सब्सक्राइब द ड्रॉगबा भाई। चलो गाइस, मिलते हैं फिर जल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड अप द चेल्स। अब तो चेल्सी।